Hello friends, welcome to Sciphilic Academy. This is lecture number 8 and the chapter of discussion is atomic structure. As of now we have seen several atomic theories. In the previous session we have seen wave nature of electromagnetic radiations, that is how the energy emitted by accelerated bodies have wave natured electromagnetic radiations, and whole scientific world was delighted with this discovery, since this theory was able to explain propagation of light, diffraction, interference. Such several phenomena of light were successfully explained by this wave theory of electromagnetic radiations. However, few light phenomena still were enigmatic, and the phenomenon like black body radiation, photoelectric effect were not able to explain on the basis of wave theory of electromagnetic radiations. So let's see what made Max Planck to think about particle nature of electromagnetic radiations, and whole scientific world was forced to think and to discover and to work on wave particle duality, and which is the origin, or we can say that the key thing behind quantum mechanics was these phenomena. So let's see what exactly in black body radiation made Max Planck to think about particle nature of electromagnetic radiations. So friends, as we have discussed, phenomena like black body radiations and photoelectric effect cannot be explained on the basis of wave theory of electromagnetic radiations. So let's see what is black body and ordinary body. Friends, as all of you know, when light falls on any object or light falls on any solid, three things happen. Part of the light gets reflected, part of the light gets absorbed, and part of the light gets transmitted. So friends, in these three processes, this reflected light decides the color of that object. When light falls on the solid, part of the light gets absorbed, let's say, and that depends on the properties of that solid. Let's say the light fallen on this object absorbed almost 70%, 20% of light is reflected, and 10% is transmitted. This is just a random example for ordinary body. So friends, the energy or light reflected by this object decides color of the object, that is, color of the object is decided by the wavelength of reflected light. So friends, this is one cycle of wave, and this is the wavelength. Wavelength is nothing but the distance between two crests or two troughs. This is crest, this is crest, this is trough, this is trough. So this is also wavelength, distance between two troughs, and distance between two crests is also a wavelength, and this wavelength, that is this length, decides the color complementary to this wavelength. And this, let's say this reflected light has wavelength lambda, then object will look like the complementary color for this wavelength. Let's say if it is red, that means the wavelength would be in 600 to 700 nanometer. So this is about the ordinary body, what exactly happens when light
falls on ordinary body, or when an ordinary body is irradiated with light, these three things happen. So friends, what exactly black body is? Black body is the ideal body which absorbs all the electromagnetic radiations, all the energy it absorbs, and then re-emits all the energy absorbed. That is, in this case of black body, this absorbed electromagnetic radiations will be approximately 100%, and this transmission will be 0% and reflection will be 0%. Almost all light gets absorbed and then it emits absorbed energy. So friends, why scientific world or Max Planck or other scientists chosen black body for their study? Because while studying, while discovering, or while doing research on intensity of emitted light, had they been used ordinary body, the result would have, or experimental results would have, some reflected light, and the experimental results will not be the authentic and standard. Hence, they have used the black body which absorbs all the electromagnetic radiations. Since black body is an ideal body which absorbs all the electromagnetic radiations fall on the body, and it emits all the wavelengths. It absorbs all the wavelengths and it emits all the wavelengths. That's why black body is used for the research purpose, and so that the experimental results can be used as authentic or standard. So next we will see, friends, what exactly is the nature of intensity of emitted light. So friends, let's see कि ऐसा क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में जो वेव थियरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. जब हम फ्रेंड्स किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करना शुरू करता है. अगर आप किसी ब्लैकस्मिथ के पास, लोहार के पास जाके देखते हैं तो जब वो लोहे को तपाता है तो पहले वो रेड बनता है, फिर व्हाइटिश बनता है, फिर ब्लूइश बनता है. तो जिस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके कलर में चेंजेस होते जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये स्टडी के लिए व्हाई दे हैव चूजन द ब्लैक बॉडी. फ्रेंड्स, ब्लैक बॉडी ये बॉडी है जो कि सारे वेवलेंथ एब्सॉर्ब करती है और सारे इमिट करती है. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी पॉसिबल है क्या? ऑलमोस्ट 98-99% तक एब्सॉर्प्शन वाली ब्लैक बॉडी जो है वो बना सकते हैं. जैसे कि किसी बॉडी को कोटिंग दिया जाए या लेप लगाया जाए चारकोल या लैम्प ब्लैक का, तो इस कार्बन ब्लैक या चारकोल, जो हम इसको मराठी में काजड़ी बोलते हैं, इसका लेप लगाने से ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और लाइट फॉलन ऑन दैट ऑब्जेक्ट इट गेट्स एब्सॉर्ब. तो ये कैसे होता है, और इसको लेप लगाने के बाद में ये ब्लैक बॉडी कैसे बनाते हैं? एक छोटा सा, एक सर्कुलर बॉडी में एक छोटा सा होल कर देते हैं और इनसाइड से पूरा लैम्प ब्लैक का लेप लगा दिया जाता है. और जब लाइट इस होल में से इसके अंदर गिरती है तो सेवरल टाइम्स ये रिफ्लेक्ट होके एब्सॉर्प्शन इसका बढ़ते जाता है. मतलब मान लो ये फर्स्ट हिट में इधर कुछ 60% एब्सॉर्ब हो गई, फिर से इधर रिफ्लेक्ट होती है और कुछ 10%, इस तरह से ज्यादा रेडिएशंस जो है इधर एब्सॉर्ब कर दिए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरह की जब ब्लैक बॉडी जो कि सारे वेवलेंथ्स एब्सॉर्ब भी करती है और सारे वेवलेंथ्स इमिट भी करती है, इसको जब हीट किया जाए तो ये पूरी की पूरी एनर्जी एब्सॉर्ब भी करेगी और सारे वेवलेंथ्स वो इमिट भी करेगी. हालांकि अगर हम ऑर्डिनरी बॉडी यूज करते हैं तो थोड़ी वो सारे वेवलेंथ्स जो है वो इमिट नहीं कर रही है, तो स्पेक्ट्रम जो मिलेगा
जो भी इमिट करने के बाद में हमें कलर्स दिखेंगे उसमें कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट के भी रहेंगे, या फिर पूरी एनर्जी एब्सॉर्ब ना होने से वो जो स्पेक्ट्रम रहेगा वो कंप्लीट नहीं रहेगा। तो हेंस ब्लैक बॉडी कैन इमिट ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस देन एनी अदर बॉडी एट द थर्मल इक्विलिब्रियम। जब भी हम बॉडी को हीट कर रहे हैं तो वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आने के लिए ट्राई करता है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की प्रोसेस में ये एनर्जी को इमिट करता है। तो फ्रेंड्स, बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में आते समय जिस तरह से इट इमिट्स द एनर्जी, उसकी अगर इंटेंसिटी स्टडी की गई तो फ्रेंड्स ये पाया गया कि जैसा हमने देखा है कि हर एक टेम्परेचर पे T1, T2, T3 जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ऑब्जेक्ट के कलर में चेंजेस होते जाते हैं। कुछ ब्लैकस्मिथ फ्रेंड्स उसका कलर देख के, ऑब्जेक्ट का कलर देख के उसका टेम्परेचर बताते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि कलर से ही हम उसका टेम्परेचर जज भी करते हैं। नहीं तो क्या सूरज के ऊपर उसका टेम्परेचर जानने के लिए थर्मामीटर भेजना थोड़ी पॉसिबल है। तो कुछ स्टार्स के, ऐसे प्लैनेट्स के, उसके कलर से हम उस प्लैनेट के ऊपर क्या टेम्परेचर रह सकता है उसका अनुमान लगाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके इंटेंसिटी का कर्व, उसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है, ये इस ग्राफ से हमें पता चलता है। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी ग्लो जो रहता है किसी कलर का, डार्कनेस, जितना ग्लो ज्यादा यानी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। और वेवलेंथ डिसाइड करता है कलर, यानी 620 नैनोमीटर है तो वो रेडिश कलर रहेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है यानी उसका भड़कपन, यानी कितना डार्क ये कलर है, वो कि कौन डिसाइड करता है, उसकी इंटेंसिटी, कितना अमाउंट ऑफ दैट वेवलेंथ इज इमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये पाया गया जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है, एंड दैट इंटेंसिटी रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। और ये मैक्सिमा रीच करने के बाद फिर उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम कम होती जाती है। और इधर वाला जो इंफ्रारेड रीजन है, उसमें इंफ्रारेड रीजन में उसकी इंटेंसिटी और भी कम 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 होती जाती है। ये जीरो कभी नहीं होती फ्रेंड्स। एट ऑल टेम्परेचर्स ऑल बॉडीज इमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विद सम लेस और मोर क्वांटिटीज। और फ्रेंड्स, अगेन उसके आगे जाके जब इसका टेम्परेचर और बढ़ा के देखा तो हायर टेम्परेचर पे ये सेम पैटर्न मिला, लेकिन उसकी जो मैक्सिमा है वो लेफ्ट साइड में यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुई है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो लोअर वेवलेंथ में पाई गई है। तो फ्रेंड्स, मान लो एक हायर टेम्परेचर T2 के ऊपर अगर इस इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया गया, सिमिलरली इंटेंसिटी जो है वेवलेंथ के साथ बढ़ती गई, एक मैक्सिमम रीच किया और बाद में वो कम होती गई। और ये जो मैक्सिमा है इस टाइम जब टेम्परेचर बढ़ा तो इट शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इज टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। सो फ्रेंड्स, साइंटिफिक वर्ल्ड के आगे ये एक बड़ा चैलेंज था कि इस ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, यानी कौन सा ऐसा इक्वेशन बनाया जाए, या फिर ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें हम इंटेंसिटी की वैल्यू डालेंगे तो मुझे वेवलेंथ मिलेगा, या फिर वेवलेंथ की वैल्यू डालेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगी। सो साइंटिफिक वर्ल्ड वाज इन सर्च ऑफ दैट इक्वेशन which will explain this graph, and several scientists attempted research on this graph on the basis of classical physics, that is wave nature of electromagnetic radiation। और सबसे बड़ी बात वेव नेचर की क्या है, वेव नेचर कंसिडर करता है कि लाइट कंटिन्यूअसली इमिट होती है, यानी जो एनर्जी इमिट हो रही है वो एनर्जी कैसी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो ये एज्यूम करके, कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी को एज्यूम करके साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। एट दैट टाइम नो वन वाज सक्सेसफुल। उसी में एक साइंटिस्ट थे रेले एंड जीन्स,
उसी में एक साइंटिस्ट थे, जोड़ी थी ये दो साइंटिस्ट की, रेले एंड जीन्स की। इन्होंने वेव थियोरी के आधार पर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो इन्हें किस तरह का ग्राफ मिला फ्रेंड्स? ये लोअर वेवलेंथ्स के लिए, सॉरी हायर वेवलेंथ्स यानी लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए ये तो सटीक बैठ रहा था, परफेक्ट बैठ रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये अल्ट्रावायलेट रीजन में गया तो उसकी इंटेंसिटी, यानी इन्होंने जो इक्वेशन बनाया था, रेले एंड जीन्स ने जो इक्वेशन बनाया था थियोरेटिकली, ये तो हमें मिला है प्रैक्टिकली। ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। रेले एंड जीन्स ने कोई तो, हम उसके इक्वेशन के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कोई तो एक इक्वेशन बनाया था। इस इक्वेशन के आधार पर इतना पार्ट जो ग्राफ का है वो उनको सिमिलर मिल रहा था। इतना पार्ट जो है वो सिमिलर मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन में जा रहे थे तो उनके इक्वेशन के हिसाब से इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो रही थी। यानी ये जो ग्राफ है ये सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा था उनके इक्वेशन के आधार पर। ये ऐसे ले लिया तो ये सीधा ऊपर, यानी फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज द इंटेंसिटी वाज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट विथ देयर इक्वेशन, and this inconsistency with the experimental result was called as ultraviolet catastrophe. उसको क्या कहा गया था? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कह रहा था कि इसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ बढ़ रही है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, बाद में ये हायर वेवलेंथ्स के लिए इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा रीच करके कम हो रही है। लेकिन रेले एंड जीन्स के इक्वेशन को अगर यूज किया है तो ये जो इंटेंसिटी है लोअर वेवलेंथ्स के लिए इनफाइनाइट बता रही थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल रिजल्ट्स में जो इनकंसिस्टेंसी है, दैट इनकंसिस्टेंसी वाज कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। And Wien's equation, also several other scientists like Wien and Rayleigh-Jeans attempted research on this on the basis of classical theory, that is wave-natured theory, but all the theories failed to explain this graph. So Max Planck came into the picture like a hero and he assumed ये जो एनर्जी इमिट हो रही है बॉडी से, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस वन। ये तो पहले उसने एज्यूम किया, फिर एक्सपेरिमेंटली और उसकी इक्वेशन में ये सब डाल के उसको प्रूव किया। तो ये सबसे बड़ा उसका एजम्पशन था कि एनर्जी जो इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। वो कैसे है? कुछ पैकेट्स में है, यानी वो रैंडमली सारे कंटिन्यूअसली सारे नंबर में वो इमिट नहीं हो रही है। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसके पास 100 रुपए है और सारे 100 रुपए 1 रुपी के कॉइन डिनोमिनेशन में है, तो वो आदमी 1 रुपए देगा, 2 रुपए देगा, 100 रुपए देगा, 90 रुपीज देगा। बट कैन ही गिव 7.5 रुपीज, 8.5 रुपीज? नो, ही कैन गिव ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 1 रुपी, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 100। सो मैक्स प्लैंक ने भी ये एनर्जी को क्या किया, एज्यूम किया कि एनर्जी भी जो है वो पैकेट्स में है, बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसको उन्होंने क्वांटा कहा। तो एनर्जी जो इमिट हो रही है वो क्वांटा के स्वरूप में इमिट हो रही है, यानी और वो जो क्वांटा है, एनर्जी जो है वो एनर्जी उन्होंने माना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उसकी उतनी एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। आगे चल के इस एनर्जी का इक्वेशन मिला, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन क्या रहती है? H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर योर करिकुलम इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये जो एनर्जी है H म्यू रहेगी, ये आगे जाके पता किया गया। और जो एनर्जी इमिट हो रही है वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू रहेगी, ऐसा मैक्स प्लैंक ने कहा। वी विल सी द डिटेल्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी। लेकिन ग्लिम्सी में क्या है कि
मैक्स प्लैंक ने ऐसा क्या डिसरप्टिव थिंक किया, बहुत ही अलग थिंक किया दूसरे साइंटिस्ट से। तो वो की थिंग क्या थी? अदर साइंटिस्ट tried to explain this nature on the basis of classical physics, which assumes continuous emission of energy, whereas Max Planck assumed that energy is not emitted continuously, it is emitted in the bundled forms, that is packets of energy, to which he called as quanta, and this energy is said as quantized, यानी ये पैकेट के फॉर्म में एनर्जी है। विल सी द फीचर्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, प्लैंक सबसे अलग से जो उन्होंने थिंक किया था कि एनर्जी जो इमिट हो रही है दैट इज नॉट द कंटिन्यूअस वन एंड इट इज इन द डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड फॉर्म। सो दिस वाज हिज बिगेस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एजम्पशन, जिसने पूरे फिजिक्स की नींव हिला दी थी। पूरा फिजिक्स का पर्सपेक्टिव, फिजिक्स को ही पूरी तरह से ड्रास्टिक चेंज में इन्होंने इस एजम्पशन से लेके आए और फिजिक्स को एक नया, मतलब ये बहुत ही अलग तरह का इनका एजम्पशन था कि एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड ही कॉल्ड दिस बंडल्स एज क्वांटा। इसको और डिटेल में अगर समझा जाए क्वांटा रहेंगे कैसे, तो मान लो किसी एक आदमी के पास 100 रुपए है और सारे 5 रुपीज कॉइन है, तो वो आदमी 5 रुपए से कम पैसे दे सकता है क्या? नहीं। यानी मिनिमम उसको अगर कुछ देना है तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपए से कम वो नहीं दे पाएगा। और इस एजम्पशन में मैक्स प्लैंक ने क्या एज्यूम किया, जो बंडल्स है, जो एनर्जी के बंडल्स बॉडी इमिट कर रही है या एब्सॉर्ब कर रही है, वो एनर्जी के बंडल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी रहेगी। और उन्होंने इक्वेशन फाइंड आउट किया, E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी एक बंडल की उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? E इज इक्वल टू एच म्यू, और H को कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यानी वो ऑब्जेक्ट को इससे कम वाली एनर्जी वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। एब्सॉर्ब अगर करना है तो सबसे कम से कम उसको, जैसे कि एक आदमी के पास सारे 5 रुपए के कॉइन्स है और 100 रुपए है, तो वो कम से कम 5 रुपए देगा, उससे कम पैसे वो नहीं दे सकता। या फिर मान लो कोई आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो वो एक सीढ़ी चढ़ेगा, आधी सीढ़ी वो चढ़ नहीं सकता, 1.5 सीढ़ी वो चढ़ नहीं सकता। आइदर he has to take 1 step or 2 steps, like that. Either the energy emitted will be h mu or 2h mu or 3h mu, but it will not be 2.5h mu. यानी इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू वो नहीं लेगा। ये जो पैकेट्स है, इसी पैकेट्स में वो एनर्जी को इमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल मैटर है तो क्या वो एटम्स और मॉलिक्यूलर लेवल पे ही उसका एब्सॉर्प्शन और इमिशन होता है ना। तो वो जो एटम और मॉलिक्यूल है वो मिनिमम कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा? h म्यू के जितनी, और इमिट भी करेगा तो मिनिमम इतनी रहेगी, इससे कम वाली एनर्जी इट कैन नॉट इमिट। विथ दिस एजम्पशन, that is smallest amount of energy that can be emitted is E is equal to h mu, इस assumption और इस equation के साथ Max Planck was successful in explaining the nature of intensity, which is function of wavelength at particular temperatures। ये जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बढ़ता, जैसे भी वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ जाती है और एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में कम होती जाती है। तो इस ग्राफ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए मैक्स प्लैंक विथ दिस इक्वेशन, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, जर्मनी वॉज द ग्रेट लैंड विथ ग्रेट साइंटिस्ट, और ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट ही थे। मैक्स प्लैंक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिनको मेरे ख्याल से 1918 का नोबेल प्राइज इनकी इस डिस्कवरी के लिए मिला था। और इन्होंने इस इक्वेशन का
यूज करके इस ग्राफ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थियरी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इस लेक्चर में और आगे के लेक्चर में हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं. और इस तरह से मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखती थी, एज्यूम करके कि एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इज नॉट द कंटिन्यूअस वन, एंड इंस्टेड ऑफ दैट it is in discrete or quantized form. Energy is absorbed or emitted in the bundles or packets of energy, to which he called as quanta, and सबसे कम से कम उस क्वांटा की एनर्जी रहेगी h म्यू. तो फ्रेंड्स, ये सेशन हमने 5 पार्ट्स में देखा. जस्ट वी विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड. With the reference to previous session, we have seen in the previous session wave theory of electromagnetic radiations, ki how accelerated charged bodies radiate energy in the form of waves of electromagnetic radiations, and whole scientific world was delighted with this discovery of wave theory of electromagnetic radiations, since several phenomena like propagation of light, interference, diffraction were successfully and beautifully explained with this wave theory. However, few phenomena were still enigmatic, like black body radiations and photoelectric effect. To explain these phenomena, several research had done, and Rayleigh and Jeans and Planck how contributed to this work we have seen. In the first part, we have seen the limitations and wave theory of electromagnetic radiations. Then we have seen इस experimental observations के लिए black body क्यों चूज की गई, and black body क्या होती है. black body वो होती है which absorbs and emits all the wavelengths. जैसे कि कोई बॉडी के ऊपर, कोई सॉलिड के ऊपर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होता है, यानी व्हेन द सॉलिड इज इरेडिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो एब्सॉर्ब करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है. तो इससे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा. वो जो इमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, वो इमिट करने के बाद जो कलर इमिशन के जो वेव्स मिल रहे हैं वो मैक्सिमम नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी थोड़ी जो है वो वेस्ट हो रही है. कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा का पूरा एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है. तो उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसी बॉडी चाहिए थी कि जो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब करे. तो ऐसी बॉडी कौन थी? ब्लैक बॉडी. ये भी प्रैक्टिकली 100% एब्सॉर्ब नहीं करती है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% जो चारकोल या कार्बन ब्लैक को का लेप लगा के जो बॉडी बनाई जाती है, विच कैन बी यूज्ड एज अ ब्लैक बॉडी. और इसको अगर इन्होंने स्टडी किया, और थर्ड पार्ट में हमने देखा कि उसकी इंटेंसिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग टेम्परेचर्स पे. मान लो कोई टेम्परेचर T1 है तो उसकी इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ती जाती है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद वो कम होते जाती है, ये मैक्सिमा के बाद कम होते जाती है. तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया रेले एंड जीन्स ने. किस थियरी के आधार पर? जो हमने फोर्थ पार्ट में देखा कि क्लासिकल फिजिक्स, यानी जो एज्यूम करता है कि कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी, उस आधार पर, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आधार पर इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. और इन्होंने कोई तो एक इक्वेशन बनाया था जिसे हमने इसमें नहीं देखा, हमने सिर्फ प्लैंक्स का इक्वेशन देखा, इज इक्वल टू एच म्यू. तो इनका इक्वेशन जो है प्रैक्टिकल, हमारा ये जो रिजल्ट है इसको आधा ही एक्सप्लेन कर रहा था. यानी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट विथ ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. लेकिन ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, उसकी इंटेंसिटी इनफाइनाइट बता रहा था. उसकी इंटेंसिटी कितनी बता रहा था? इनफाइनाइट. और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो तो उसके ऑपोजिट था. तो ये इनकंसिस्टेंसी जो थी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियरी में, उसे कहा गया था अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी. और रेले जीन्स के फेलियर होने के बाद में मैक्स प्लैंक ने ये एक बहुत ही अलग तरह का एजम्पशन किया. बिल्कुल पूरा फिजिक्स को तरोड़ मरोड़ के रख दिया, पूरा फिजिक्स को एक दूसरे पड़ाव पे लेके गए. और क्वांटम मैकेनिक्स की नींव जिस एजम्पशन से रखी गई थी वो एजम्पशन था प्लैंक्स का कि एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इज नॉट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज इन द
bundles or packets of energies formed. So he termed these packets as quanta, and this energy emitted or quanta is directly proportional to frequency, and minimum amount of energy which can be absorbed or emitted by the body E is equal to h mu, where h is Planck's constant. यानी कोई भी बॉडी जो है वो इमिट या एब्सॉर्ब करेगी तो कम से कम h म्यू के जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब या इमिट करेगी, इससे कम या इन बिटवीन एनर्जीज वो इमिट या एब्सॉर्ब नहीं करेगी. सो दिस वाज द की थिंग्स इन द प्लैंक्स क्वांटम थियरी. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू फ्रेंड्स. जो भी फ्रेंड्स हमारे इस सीरीज को देख रहे हैं इमीडिएटली इस लेक्चर के ऊपर मत आए. पिछले जो 7 वीडियोस है उसे देख के अगर ये देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. पूरी प्लेलिस्ट में सीरीज में लेक्चर्स रखे हुए हैं. लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस वाज द 8th लेक्चर. So again in next lecture we will see about particle nature of electromagnetic radiations only through photoelectric effect. How Einstein explained photoelectric effect, that we will see in the next session. Okay friends, thank you.